بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز. آج ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ. اور آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ ہم نام دیں گے اس کو بیسک اکاؤنٹنگ اور فور نام اس لیے دیا جا رہا ہے. ویری فرسٹ لیکچر کے اندر ڈیفینیشن ڈسکس ہوئی, پھر اس کی امپورٹنس ڈسکس ہوئی سیکنڈ لیکچر میں, تھرڈ لیکچر میں بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کا فرق ہم نے ڈسکس کیا. آج ہمارا فورتھ لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر جو ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نام ہے ہیڈز آف اکاؤنٹس. سلیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اور اس کا نام ہو سکتا ہے ایلیمنٹس آف اکاؤنٹس, اور تھرڈ نام اس کا ہو سکتا ہے پلرس آف اکاؤنٹس. اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بیسک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی بیس اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر, یعنی کہ اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کے اندر, ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ آج سے یعنی کہ BA4 سے آنورڈس جتنے بھی لیکچرز ہوں گے ان کو لازمی طور پر میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں, ان کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ لازمی ہے ان کے لیے کہ سارے کے سارے لیکچرز ہمارے جو ہے وہ آپ شروع سے آخر تک اس کو لازمی اس کو اسٹڈی کریں, دیکھیں, سمجھیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی بیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو پائے گی. جو لیکچرز آپ نے ابھی تک اگر نہیں بھی دیکھے ہوں تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ان لیکچرز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ جو یہ ضرور پہنچتا کہ آپ کے کنسیپٹ اسٹرانگ ہو جائیں گے. لیکن آج سے آنورڈ اگر آپ نے لیکچرز مس کر دیے تو آپ کو پرابلم یہ کریٹ ہو جائے گی, آپ کی بیس کمزور رہ جائے گی. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا وہ ہے بیسیکلی ہیڈز آف اکاؤنٹس, یعنی کہ اکاؤنٹنگ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اسٹوڈنٹس اس کے ہیڈز کون کون سے ہیں. ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے سردار. اگر آپ نے کہتے ہیں جس طرح ہماری باڈی ہوتی ہے اس باڈی کے بھی کچھ سردار ہے جو کہ ہمارا سر کہلاتا ہے. اسی لیے جو اگر آپ نے اپنے سردار جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو بچانا ہے, بالکل اس طرح اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان ہیڈز کو آپ کو بچانا ہے. اگر آپ نے ان ہیڈز کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیا تو آپ کی گرپ جو ہے سبجیکٹ کے اوپر انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی. اسی کا ایک نام اور بھی ہے ایلیمنٹس آف اکاؤنٹس, یعنی کہ اکاؤنٹس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے عناصر کون کون سے ہیں, کون کون سے اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو اسٹڈی کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. تھرڈ اس کا نام ہو سکتا ہے پلرس آف اکاؤنٹس. پلر جس طریقے سے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے پلر ہوتے ہیں, اور اگر پلر آپ اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پلر نہ ہوں تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. بالکل اس طریقے سے اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے بھی یہ 5 پلرس ہیں. ایک کلاس کے اندر بھی ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں, پنجتن جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے 5 ہیں, بالکل ویسے ہی ہیڈز آف اکاؤنٹس بھی 5 ہیں. پنجتن نہ تو 4 ہیں اور نہ ہی 6 ہیں. سیم یہی کنسیپٹ ہے یہاں پر بھی کہ ہیڈز آف اکاؤنٹس بھی نہ تو 4 ہیں اور نہ 6 ہیں. پوری کی پوری اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ان 5 ہیڈز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, ان 5 ہیڈز کے اوپر اسٹینڈ کر رہی ہے. اگر آپ نے 5 ہیڈز اچھی طریقے سے پڑھ لیے تو آپ کی جو منزل ہے وہ بہت ہائی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور اگر آپ کی منزل صرف انٹر کامرس پاس کرنا ہے تب بھی یہی 5 ہیڈز ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے تب بھی یہی 5 ہیڈز ہیں. آپ کو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بننا ہے تب بھی یہی 5 ہیڈز ہیں. BCom BBA MBA MCom کرنا ہے تب بھی یہی 5 ہیڈز ہیں. پاکستان میں پڑھ رہے ہوں, امریکہ میں پڑھ رہے ہوں, کسی جگہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوں, ہیڈز آف اکاؤنٹس یہی 5 ہیں. لوکل رائٹرس ہوں, فارن رائٹرس ہوں, ہیڈز آف اکاؤنٹس یہی 5 ہیں. یہ جملے میں نے کیوں بولے, صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے یہ 5 ہیڈز آف اکاؤنٹس کو اچھی طرح سے پڑھ لیا تو سمجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گاڑی ہائی وے کے اوپر دوڑے گی انشاءاللہ. بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. پہلی چیز ہے ہمارے پاس, دیکھیں اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ایسیٹس, اردو میں اس کو بولا جائے گا اثاثے. سیکنڈ ہیڈ آف اکاؤنٹ آپ نام دے سکتے ہیں لائبلٹیز, اردو میں بولا جائے گا ذمہ داریاں یا واجبات. تھرڈ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے کیپٹل, پروپرائٹرشپ, اونرز ایکویٹی, اردو میں بولا جائے گا سرمایہ, ملکیت یا مالک کا حق. فورتھ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے ایکسپینسز, اخراجات. ففتھ ہے ریونیوز, آمدنیاں. ایک بات اور کلیئر کروں, یہ جس ترتیب میں نے لکھا ہے 1 2 3 4 5 ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اسی ترتیب میں پڑھیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں ففتھ والے کو پہلی دفعہ پہلے نمبر پہ پڑھ لیں, تھرڈ والے کو آپ جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ پڑھ لیں. اس کا مطلب وہ اس 1 2 3 4 5 میرے لکھنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں سمجھیے گا کہ اسی ترتیب میں ان ہیڈس کو پڑھنا لازمی ہے. کسی بھی نمبرنگ کی جو شفلنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن عام طور پر ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ایسٹ سے ہیڈز آف اکاؤنٹ کو پڑھانے کا آغاز کیا جاتا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹس, ایسٹس کا مطلب اردو میں نے یہاں پہ لکھا ہے اثاثے. ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ویڈیو لیکچر جو ہیں ان سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بعد میں بناؤں گا. آج کا ہمارا صرف انٹروڈکٹری ٹاپک ہے.
एसेट का मतलब होता है असासे। असासे किसको बोलेंगे? सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कोई बोला जाए ये जुमला कि एसेट से आप क्या डिफाइन करेंगे? बोलेंगे हर वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट या असासे की हैसियत रखती है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल हो। 3 वर्ड्स मैंने बोले, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये 3 अल्फाज का क्या मतलब है? फ्यूचर माने मुस्तकबिल, इकोनॉमिक मुआशी, बेनिफिट फ़ायदा। समझने की कोशिश करिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे सेवर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे वाइट बोर्ड मौजूद है, जैसे कि ये मार्कर मौजूद है, वाइट बोर्ड मार्कर, ये सारी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, द लर्निंग पॉइंट के लिए असासे की हैसियत रखती है। क्वेश्चन ये है कि इसको मैं पंखे को, बोर्ड को, टेबल को असासा क्यों कह रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। कहते हैं हर वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए असासे की हैसियत रखती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मुस्तकबिल में कोई ना कोई मुआशी फ़ायदा, यानी कि कहीं ना कहीं पैसे की सूरत में उसको ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हासिल हो रहा हो। अब आप बोले सर फ़ायदा कैसे हासिल हो रहा है? जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट आएंगे तो यहाँ उनको फ़ीस अभी ले तो पढ़ाया नहीं जा रहा, वो आ रहे होंगे, उनसे ट्यूशन के नाम पर, ट्यूशन फ़ीस के नाम पर कुछ ना कुछ पैसे उनसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं वो बच्चा दे क्यों रहा है? सर्विस उसको मिल रही है। सर्विस जो मिल रही है तो क्या पंखे की हाजत है? जवाब है बिल्कुल है। गर्मी का मौसम है, पंखे के बगैर बच्चा भाग जाएगा। इसका मतलब वो पंखे का चलाना, रोशनी का इंतज़ाम लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि रोशनी नहीं होगी तो रात के अंदर खास तौर पर कैसे बढ़ेगा? दिन में तो चले सूरज की रोशनी से काम बन जाएगा, लेकिन रात में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट मीन्स दैट बल्ब जो है या पंखा जो है वो उस बच्चे के लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है और वो बच्चा जो है इन सहूलियात से फ़ायदा उठाकर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है इन टर्म्स ऑफ फीस। इसका मतलब हुआ कि वो बच्चा जो फ़ीस पे कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कुछ यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो रहा है और उस फ़ायदे के एवज़ में वो यहाँ पर फ़ीस पे कर रहा है। इट मीन्स दैट कि जितने मैंने आपको एसेट्स के नाम लिए इसके अलावा भी हो सकते हैं, चेयर्स हैं, डेस्क हैं, इन सारी चीज़ों से उस बच्चे को फ़ायदा हासिल होता है। और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ़ायदा चूँकि वो प्रोवाइड हो रहा है तो वो कोई ना कोई पैसे की सूरत में, मनी की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हासिल होता है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को बोला जाएगा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी एसेट। एसेट की टाइप्स कितनी हैं, उन एसेट्स की एग्जाम्पल्स कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उनका मतलब क्या है, वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है उर्दू में जिम्मेदारियाँ या वाजिबात। यहाँ पे एक छोटी सी बात क्लियर कर दूँ, कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ कि जिम्मेदारियों को या वाजिबात को जो आपको स्टडी करना है, डिस्कस करना है, वो जर्नल हमारा जो सोसाइटी होती है उसके एस्पेक्ट से नहीं करना है। एक मिसाल मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को अपने। मिसाल के तौर पर एक वालिद साहब ने अपने बेटे को बोला कि बेटा 1 पाव दही, आधा किलो दही ज़रा दुकान से लेकर आ जाओ। बच्चा है क्रिकेट का शेदाई, लास्ट मैच चल रहा है, टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा है और आखिरी ओवर चल रहे हैं। बच्चे ने कहा जी अब्बा अभी मैं जाता हूँ। आधे घंटे के बाद वालिद साहब नमाज़ पढ़ के वापस घर आ गए और पता चला अभी भी बेटा टीवी को मुँह चढ़ा रहा है, यानी कि टीवी देख रहा है। बच्चे को उनके वालिद साहब एक जुमला बोल के अगले कमरे में चले गए कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हो। सवाल, क्या वालिद साहब ने सही जुमला बोला है? जवाब है बिल्कुल सही बोला, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी बनती थी कि जाके दही लेकर आ जाए। लेकर जो नहीं आया तो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वालिद का जुमला सही हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सेंस में आपको जिम्मेदारी को नहीं पढ़ना, इस सेंस में आपको वाजिबात को नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये हुआ फिर किस सेंस में पढ़ना है? उसका जवाब मैं आपको छोटा सा दे दूँ। इस सेंस में पढ़ना है जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो तालीमी इदारा है, बच्चे को वो पढ़ा रहा है तो फिर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि उसको फ़ीस पे करें। एक दूसरी मिसाल, अगर आपने किसी पार्टी से माल ख़रीदा है तो जिस पार्टी ने माल ख़रीदा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको फ़ीस से मुराद उसको उस माल के, उन गुड्स के पैसे अदा करे। अगर तो वो अदा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर जो वाजिबात हैं वो पूरे नहीं कर रहा है। इस सेंस में आपको लायबिलिटी को पढ़ना है कि जो घरेलू तौर पर जिम्मेदारियाँ होती हैं या वर्ड इस्तेमाल होता है उस सेंस में नहीं पढ़ना है। अच्छा, लायबिलिटीज़ की भी स्टूडेंट्स काइंड्स होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। उस तफसीलात में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा।
थर्ड पॉइंट है आपके पास कैपिटल। कैपिटल किसको बोला जाएगा, इसी का एक नाम और भी है प्रोप्राइटरशिप और एक नाम है ओनर्स इक्विटी। अच्छा, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता यह है, मालिक कारोबार के अंदर जितना भी पैसा लगा दे या अपने कुछ एसेट्स कारोबार के अंदर लगा दे, तो एसेट्स को कारोबार में लगाने की वजह से होता कुछ यूँ है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका सरमाया मालिक का बढ़ रहा होता है। ये जो सरमाया है ये बेसिकली कहलाता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप को उर्दू में आप बोल सकते हैं मिल्कियत, मालिक का उसके ऊपर हक है उन एसेट्स के ऊपर। एक नाम और भी है ओनर्स इक्विटी। ओनर माने मालिक, अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की या के, इक्विटी का मतलब होता है हक। ओनर्स इक्विटी मालिक का हक, साडा हक। मालिक का हक जो होता है, ओनर्स इक्विटी जो होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि मालिक का हक, जाहिर सी बात है ओनर्स इक्विटी कहलाएगा। तो ओनर्स इक्विटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, याद रखिएगा, ओनर अपने कारोबार में 1 रुपए की सुई, निडल, वो लेकर आ जाए, या ओनर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरी बिल्डिंग की सरमायाकारी कर दे, कुछ भी वो करता है उसका हक कारोबार के अंदर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स में इजाफा हो रहा है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे कि सरमाए में इजाफा हो रहा है। इसकी भी तफसीलात इंशाल्लाह ताला आपको फराहम की जाएंगी। फोर्थ हेड ऑफ अकाउंट है आपके पास एक्सपेंसेस। नाम से जाहिर है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है अखराजात। अखराजात जो हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजिंग के ऊपर वो खर्चा कर रहा है, रेंट के ऊपर खर्चा हो रहा है, सैलरीज के ऊपर खर्चा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ तरह के कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह के ऊपर कुछ खर्चा उन्होंने किया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरह से बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंस हो सकता है, जैसे उसने लोन लिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने और कर्जे के ऊपर उसको सूद अदा करना है, सूद यानी कि इंटरेस्ट अदा करना है। तो ये सारे के सारे अखराजात जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएंगे एक्सपेंसेस, अखराजात। लास्ट बट नॉट लीस्ट रेवेन्यूज़। ये रेवेन्यू ही है जिसके लिए आप सारी की सारी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको रेवेन्यू हासिल ना हो, इसको आप उर्दू में बोलते हैं आमदनियाँ, अगर ये हासिल ना हो तो फिर आपकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है और आपकी मेहनत जो है वो एक तरह से अकारत हो जाती है, फौत हो जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि रेवेन्यू भी हासिल हो। रेवेन्यूज़ भी मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती हैं, मुख्तलिफ अक़साम की हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी पार्टी को माल बेचा, तो सेल्स जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू कहलाती है, क्योंकि सेल्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 उसके हिस्से होते हैं। एक तो जो आपने माल बेचा है उस माल की अपनी कीमत होती है, और एक जो है वो उस माल की कीमत के अलावा आपका अपना प्रॉफिट होता है, यानी कि जितनी कीमत का आप इजाफी रकम हासिल करते हैं वो इजाफी रकम उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कहलाता है। तो ये 2 कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो सेल्स बन जाती है। सेल्स के अलावा भी बहुत सारे रेवेन्यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने अपना कोई जो है वो प्रॉपर्टी जो है या जो बिल्डिंग है वो फर्ज करें उसने किराए पर उठाई हुई है, तो रेंट से जो उसको आमदनी हासिल हो रही होगी उसके रेंट इनकम बन जाएगी। इंटरेस्ट की मैंने आपको मिसाल दी थी, इंटरेस्ट जो पार्टी पे कर रही है उसके लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन वो पार्टी जो रिसीव कर रही है, जैसे कि बैंक, फर्ज करें बैंक से आपने कर्जा हासिल किया, तो बैंक से कर्जा हासिल करने के बाद बैंक को आपको इजाफी रकम देनी पड़ेगी, तो आपके लिए तो वो इजाफी रकम एक्सपेंस कहलाएगी, लेकिन बैंक जिसने आपको कर्जा फराहम किया था उसको इजाफी रकम हासिल हो रही है, रिसीव हो रही है, लिहाजा बैंक के लिए वही आमदनी, वही रकम जो है वो आमदनी के तौर पर ट्रीट होगी, यानी कि वो उसके लिए इनकम बन जाएगी, इंटरेस्ट इनकम। इसका मतलब आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस और उसके लिए इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा जो है वो एडवर्टाइजिंग की हम बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग फर्ज करें आपने कोई टीवी चैनल के ऊपर इश्तिहार चलवाया या चलाया, उस सूरत में आप जो उनको पे कर रहे होंगे आपके लिए तो एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन उनके लिए कहलाएगी आमदनी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बात डिस्कस करी है वो क्या करी है कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट का हमने एक ओवरव्यू आपसे डिस्कस किया, एक हल्का सा हमने एक खाका बनाने की कोशिश करी कि आपको यह पता चल सके कि टोटल अकाउंट जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं या जो पिलर्स हैं अकाउंटिंग के, वो टोटल 5 हैं जिनका अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया। आपसे एक छोटी सी गुजारिश, लाजमी तौर पे इसको स्टडी करिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम एसेट्स की तफसीलात में जाएंगे वो आपको बेहतर तौर पे इंशाल्लाह ताला समझ में आ सके। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर, ये वीडियो पैगाम अगर पसंद आए तो लाजमी तौर पर इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों में उसको शेयर करें
اور اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اگر آپ کی کوئی کیوری ہو, یہ واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا, تو آپ اس پہ رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر جنہوں نے سر علی احمد کے نام سے ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو, کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن برابر میں ہوتا ہے, اس پہ کلک ضرور کریے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے فوراً جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل سکیں. نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو. السلام علیکم.